یہ کہانی ہے 25 سال سے بھی زیادہ طویل عرصے کی. یہ کہانی ہے ایک بیٹے کے دل میں اپنی ماں سے جدا ہونے کے درد. یہ کہانی ہے ایک عزم کی، ایک یقین کی، ایک حوصلے کی. وہ کہانی جو لاہور سے شروع ہوئی، پشاور تک گئی اور اب آپ پہنچی ہے کراچی. آئیے یہ کہانی سناتے ہیں. اس کہانی کا مرکزی کردار ایک ایسی بیماری ہے جو لاکھوں لوگوں کی جان لیتی ہے ہر سال. لیکن کہانی یہ نہیں، کہانی کا کردار مر ضرور ہے، لیکن کہانی ہے امید کی. کہانی ہے شوکت خانم کینسر ہسپتال اور ریسرچ سینٹرز کی. عمران خان نے ارادہ کیا اور آپ سب سے رابطہ کیا اور آپ سب نے مل کر عمران خان کی مدد کی اور ہم نے مکمل کیا پہلا لاہور کا شوکت خانم کینسر ہسپتال. لوگوں نے کہا ہو نہیں سکتا، مگر ہوا. پھر عمران خان نے ارادہ کیا کہ اب پشاور میں بھی یہ ہسپتال بنایا جائے گا لوگوں کی آسانی کے لیے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے پشاور کا ہسپتال بھی مکمل. اب سفر آپ پہنچا ہے کراچی میں، جہاں 20 ایکڑ پہ مشتمل یہ ہسپتال زیر تعمیر ہے. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کراچی. عمران بھائی نے کیا ارادہ، اب باقی کام کرنا ہے آپ لوگوں نے مکمل. شوکت خانم کینسر ہسپتال ریسرچ سینٹر کی جو ٹیم ہے وہ لگاتار دن رات محنت کر رہی ہے تاکہ یہ ہسپتال بھی تیار ہو سکے، اور یہ سب کچھ پاسبل صرف ایک ہی طریقے سے ہے، اور وہ ہے آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کے ذریعے. آئیے ملتے ہیں شوکت خانم کینسر ہسپتال کے سی ای او سے. So I've got the CEO of Shaukat Khanam, Dr. Mohammad Asim Yusuf. Bhai, good to see you. Great to have you. And I know कि pandemic की वजह से we're keeping our distance. So great to be here at this site. 20 acres. Yeah. 1 million square feet to be built here. جی ذرا اور بتائیں اس کے بارے میں. سو جیسے آپ نے کہا 20 ایکرز پہ پلاٹ ہے ہمارا. لاہور کا جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس وقت وہ 500,000 اسکوائر فیٹ کنسٹرکٹیڈ ایریا ہے، اور یہ اس سے ایگزیکٹلی دگنا ہے. یہ انشاءاللہ 2023 میں جب کھلے گا تو 10 لاکھ اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہوگا. پروجیکٹ کی کاسٹ کیا ہے اس کی ایسٹیمیٹڈ؟ پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ 9 ارب روپے ہے کنسٹرکشن کی، اور اس کے علاوہ 4 ارب روپے کی میڈیکل اکوپمنٹ، اسکینرز اور ریڈیشن مشینز وغیرہ جتنی اکوپمنٹ چاہیے ہوگی کمیشننگ پہ وہ ہے. سو 13 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ 2.5 سال میں مکمل ہوگا. سپٹمبر کے قریب 2023 میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. پورا پاکستان میں سب سے بڑا کینسر ہسپتال ہوگا. So if I'm not mistaken, ڈاکٹر صاحب، لاہور والے ہسپتال میں جو کہ سب سے بڑا ہسپتال ہے اس کے بننے سے پہلے، وہاں پر 30 بیڈ جو ہیں وہ کیمو تھراپی کے ہیں. جی بالکل. کیونکہ یہاں پر آپ سب کچھ ڈبل کر رہے ہیں، تو کیا یہ کیپیسٹی بھی ڈبل ہوگی؟ بالکل. یہاں پہ انشاءاللہ 69 کیمو تھراپی بیڈز ہوں گے کمپیئر ٹو 30 وہاں لاہور میں. رائٹ. لاہور میں 190 کے قریب ان پیشنٹ بیڈز ہیں، یہاں تقریباً 300 ہوں گے. لاہور میں 8 آپریشن تھیٹر ہیں، یہاں 16 ہوں گے. واو. سب سے امپورٹنٹلی یہ جو بنکرز پیچھے سائن بھی لگا ہوا ہے، ریڈیشن ٹریٹمنٹ مشینز جو ہیں وہ کانکریٹ کے بنکر میں انسٹال ہوتی ہیں. وہ لاہور میں ہمارے پاس 5 ہیں، اور یہاں پہ 10 بنکرز کی ہماری فیسلٹی بنائی. ڈبل ہر چیز کی کیپیسٹی ڈبل ہو رہی ہے. میں اگلا سوال یہ پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بڑا لیٹس گیٹ ٹو دی ہارٹ آف دا میٹر. 13 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں اس وقت؟ عمران ہمیشہ کہتا ہے کہ جو لاہور کا پروجیکٹ تھا وہ 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا،
1 करोड़ रुपए बैंक में थे जब उन्होंने शुरू किया था Right. और एक दिन पैसे की कमी की वजह से प्रोजेक्ट रुका नहीं। वो हमारे आने से पहले की बात है। पेशावर का प्रोजेक्ट हमने इसी तरह खुद देखा डेवलप होते हुए और कंस्ट्रक्ट होते हुए। इसी तरह कराची का प्रोजेक्ट है, इस वक्त हमारे पास शायद कुछ करोड़ रुपए होंगे इसके लिए स्पेसिफिकली टारगेटेड, लेकिन इंशाल्लाह हमें यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जिस तरह उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है इसमें, इस दफ़ा भी कराची में सपोर्ट करेंगे। सो कंसिस्टेंटली हमारी 70% जो डोनेशंस आती हैं वो पाकिस्तान के अंदर से आती हैं और 30% जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी तरफ से आती हैं। हमें उम्मीद है और यकीन है इंशाल्लाह कि वो भी इस प्रोजेक्ट को इसी तरह सपोर्ट करेंगे, बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइए, हाउ वल्नरेबल आर कैंसर पेशेंट्स टू कोविड-19 कोरोना वायरस? सो कैंसर पेशेंट्स की क्योंकि कुव्वत मदाफियत कम होती है तो उनको रिस्क ज़्यादा है इन्फेक्शन का, इसलिए उनको बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमने इसीलिए कैंसर की ट्रीटमेंट सारी जारी रखी कोविड के फर्स्ट वेव के दौरान और अभी भी हम जारी रख रहे हैं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ली, स्क्रीनिंग की, सेपरेट एरियाज बनाए जिनको कोविड था। सो कोविड रिस्क ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसर की ट्रीटमेंट डिले की जाए या ना की जाए। डॉक्टर साहब, शौकत खानम रिसर्च सेंटर के बारे में हमें बताएं, कितनी अहम है वो रिसर्च सारी? जी, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे मिशन स्टेटमेंट का भी ये हिस्सा है एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि डॉक्टर्स, नर्सेज एक्सेट्रा, प्लस एजुकेशन ऑफ द पब्लिक जिसके लिए फिर हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वगैरह के प्रोग्राम्स करते हैं। एंड फाइनली एंड इन सम वेज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लॉन्ग टर्म इज कि हम रिसर्च सेंटर हैं। हम बहुत बेसिक साइंस एंड क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं लाहौर में भी और पेशावर में भी, to look into the causes and treatment of cancer. डेटा कहता है 1,70,000 नए केसेस हर साल कैंसर के रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। तो जरा इसके डेटा के बारे में बताइए कि पंजाब में कितने और सिंध, बलूचिस्तान एक्सेट्रा। हर साल 60,000 से लेके 1,20,000 जो मरीज हैं वो उसी साल डायग्नोसिस में फौत हो जाते हैं बीमारी से, क्योंकि वो इतनी लेट स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर वो जल्दी पहुंचे तो उनमें से बहुत ज्यादा का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। इस वक्त हमारे जो लाहौर और पेशावर के अस्पताल हैं वहाँ हम तकरीबन 10,000 नए कैंसर के मरीज हर साल लेते हैं। इस हिसाब से अगर शौकत खानम कराची इंशाल्लाह जब तीसरा बन जाएगा तो उसके बाद भी को 15-16 और शौकत खानम जितने बड़े कैंसर अस्पताल चाहिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सारे कैंसर को ट्रीट करने के लिए। इस वक्त जो हमारे वॉक इन क्लिनिक्स हैं लाहौर, पेशावर और कराची में, वहाँ तकरीबन 45,000 मरीज हर साल आते हैं, जिनमें से हम 10,000 सिर्फ ले पाते हैं। तो कराची के खुलने से इंशाल्लाह हमारी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और इसके बाद हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हम छोटे अस्पताल इन बड़े अस्पतालों के इर्द गिर्द बनाएंगे जहाँ बेसिक ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस हो सकेगा, और जो बड़ा अस्पताल बड़े शहर में होगा वहाँ जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स हैं उधर मरीज उसके लिए आएंगे। अच्छा, आखिरी चीज बता दें, 75% इलाज जो है वो फ्री हो रहा है शौकत खानम में। दुनिया में और कितने ममालिक हैं जहाँ पे कैंसर को फ्री ट्रीट किया जाता है? हुकूमत के सपोर्ट के बगैर तो जहाँ तक हमें पता है कोई ऐसा अस्पताल दुनिया में नहीं है जहाँ मुकम्मल फ्री इलाज किए जाए 75% लोगों का। वो इसीलिए मुमकिन है क्योंकि हमारे जो डोनर्स हैं और सपोर्टर्स हैं उन्होंने मुसलसल 26 साल से अब हमें सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको पता है, उनको यकीन है कि उनका पैसा सही जगह लगता है, कि हम गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं करते और हमारे हिसाब से सारे मरीज पेइंग हैं, क्योंकि या वो खुद पे कर रहे हैं, या माइनॉरिटी है, या किसी और ने उनके लिए पे किया हुआ है। आसिम भाई, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये काम इतनी तेजी से यहाँ पे हो रहा है, और मुझे पता है कि आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। थैंक यू आप वेरी मच। सबकी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह ये सारे चैलेंजेस समाप्त हो जाएंगे। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पच्चीस साल की ये कहानी, इंसानियत की खिदमत की ये कहानी, लाहौर से शुरू होकर पेशावर से होकर अब आप पहुंची है कराची में। इस सफर के मुस्तकबिल की बुनियादें आपके सामने हैं। शौकत खानम कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ। लेकिन अभी हमने रुकना नहीं है, लाहौर का अस्पताल भी चलाना है,
पेशावर का अस्पताल भी चलाना है और कराची का अस्पताल तामीर करके इसको भी चलाना है। उसके असल हीरो इमरान खान नहीं है, वो इस कहानी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जरूर हैं, लेकिन इस कहानी के असल हीरोज हैं आप लोग। तो आप सबसे हमारी पुरजोर अपील है कि आपसे जो हो सके, जो डोनेशन आप कर सकें, जो अतिया दे सकें, जो ज़कात दे सकें, वो शौकत खानम कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर को जरूर दें। आप एक वार्ड भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, कमरा भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, और कुछ नहीं कुछ तो एक ईंट तो आप, मैं, हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह एक एक ईंट करके हम शौकत खानम कैंसर अस्पताल का मुस्तकबिल बनाएंगे। मैं हूं फखर आलम और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। यह है इंसानियत का मुस्तकबिल।